السلام علیکم. کون؟ جی زبیر انصاری بول رہے ہیں ہم. کیا بولے مرزا پور سے. زبیر انصاری. جی پوچھو آپ کیا پوچھنا ہے؟ اور ادھر خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم میں. اور بتائیے. بس اللہ کرم میں. کیا پوچھو، کیا پوچھنا؟ کچھ پوچھنا ہے؟ ہاں کچھ پوچھنا ہے تب تو فون کیا نا حضرت. پوچھو اللہ کرم سے. تب کیا بولے آپ ابھی خالی ہیں تو نہیں؟ آپ ہاں ہاں خالی ہے تو جیسے 10 منٹ ہم سے بات کر لیجیے تبھی رکھیے گا. ہاں ٹھیک ہے. پوچھو، کوئی بھی بات پیغام دینا ہو تو امت کے نام پیغام جائے گا. حضرت یہ کہہ رہے تھے نا یہ کیا بولے کہ فاتحہ کروانا کیسا ہے؟ ہیں؟ فاتحہ کروانا کیسا ہے؟ فاتحہ آپ فاتحہ جو ہوتا ہے کیا کروا سکتے ہیں نا؟ جب فاتحہ وہ لوگ دیتے ہیں وہ مردے کے نام سے یا ایسا جو ہوتا ہے. تو کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی کرنا چاہے کرے، ایسے ضروری نہیں ہے. آپ ثواب پہنچاتے رہو، بنا فاتحہ کے نام سے ثواب پہنچاتے رہو. فاتحہ کر سکتے ہیں نا؟ ہاں فاتحہ سے رہے کہ اس طرح سے کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی کرنا چاہے تو کرے. اس میں زیادہ رسم و رواج نہیں بنانا چاہیے، سادھارن طریقے سے، سادہ طریقے سے، جس طریقے سے ثابت ہو بس اتنا. تو حضرت یہ بھی ایک تھا مسئلہ کہ محرم کے چاند میں وہ کھا سکتے تو نہیں، وہ مچھلی کھا سکتے ہیں محرم کے چاند میں؟ محرم کی چاند میں مچھلی کھا سکتے ہیں؟ محرم کی چاند میں مچھلی کھا سکتے ہیں ہم لوگ؟ محرم کی چاند؟ ہاں محرم کی چاند میں مچھلی کھا سکتے ہیں. کیا کھا سکتے ہیں؟ مچھلی. اب تو محرم کا مہینہ ہی چلا گیا. نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ محرم کے مہینے میں کھا سکتے ہیں تو نہیں؟ اگر پرہیز کرے تو اچھا ہے، ویسے کھانا جائز ہے لیکن پرہیز کرے تو اچھا ہے. دل میں تقویٰ پیدا ہوگا. تقویٰ. تو حضرت صاحب کیا بولے آتا ہے کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کون؟ آپ؟ ہمارا کوئی فرقے سے تعلق نہیں ہے. ہم تو آدم علیہ السلام کو مانتے ہیں. ہمارے باپ تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام، ان کی اولادوں میں پھر تمام نبی ہوئے، پھر سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. ہم سب کے نبی تھے. یہی سب تھا وہ مسئلہ، اور کوئی مسئلہ نہیں تھا ہمارے پاس، بس یہی سب پوچھنا تھا آپ سے. ہاں ہم آپ کے کلینک سنا کرتے ہیں نا سر؟ ہاں بالکل. میں کوئی فرقے سے نہیں ہوں، نہ دیوبند سے، نہ بریلی سے، نہ الیادی سے، نہ مودودی، نہ اتاری، نہ شاکری. میرا کوئی فرقہ نہیں ہے. میں تو صرف تو وہی ہم آپ کو معلوم ہے کلینک سنے تو ہم سے دیکھے وہ ڈائریکٹ آپ سے ہی بات کر لیا جائے. اہل سنت والجماعت، ہمارا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے جو 1400 سال سے چلی آ رہی. سمجھ گئے؟ حضرت اور سب خیریت سے ہے نا آپ؟ اللہ کرنے سے. کیا کام کرتے ہیں وہاں پر مرزا پور میں؟ مرزا پور میں ہم لوگ دیکھے سلائی وغیرہ کام کرتے ہیں. یہ مرزا پور یو پی میں ہی ہے؟ یو پی میں ہی ہے. یہ کدھر آتا ہے؟ بنارس کے کدھر آتا ہے؟ جی ہاں وہی کے سائڈ آتا ہے، بنارس کے سائڈ آتا ہے مرزا پور. مسجدیں کتنی ہیں؟ 100 مسجدیں ہوں گی. مسجدیں 100 سے بیسی ہوگی. 100 سے بیسی ہوگا مسجدیں. زیادہ ہے؟ ہاں. اچھا بڑا ہے مرزا پور. جی ہاں. چلو اچھی بات ہے. آپ تو بس اسلام کی تبلیغ کرو، کسی فرقے سے کوئی تعلق مت رکھو. ہر فرقے میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو، غلطی ہے، بہت خطرناک غلطی ہیں، اور سب لوگ اپنے اپنے اکابروں کی غلطیوں کو صحیح کرنے میں لگے ہیں. اسلام وہیں کا وہیں ہے. اسلام کا کوئی کام نہیں ہو پا رہا. کام تو تھوڑا بہت ہو رہا، زیادہ نہیں ہو رہا جیسا ہونا چاہیے. لیکن ملا مولوی لوگوں کی باتوں کو صحیح کرنے میں لگے ہیں کہ ہمارا مولوی صحیح ہو گیا، ہمارا صحیح. کفر کو ایمان کو کفر بنانے میں لگے ہیں. آپ سے ہی ڈائریکٹ رابطہ کر لیا جائے. ہاں الحمدللہ. میں حضرت خواجہ غنی نواز کے جنات ہوں.
अच्छा, मैं जाते रहता हूँ, तो मैं हजरत का जिन हूँ, ख्वाजा गरीनाथ का। तो हजरत मिर्जापुर में आपके लिए बुलाए तो मतलब खर्च कितना लगेगा, आप मतलब कितना पैसा लेते हैं? पैसे में से का हमारा कोई मतलब नहीं, हम तो रोजी देखते हैं, रोजी हलाल हो, पहले रोजी हलाल तो देखते जैसे हैं, कुछ कहाँ खाना मतलब खाना है, कुछ वो जगह का ईमान नाम, वाम उस जैसे होता आदमी से है, बात कुछ कराना मौलाना पड़ेगा, जैसे हजरत बात कराना पड़ेगा, फिर उससे पूछना पड़ेगा, सूद ब्याज तो नहीं लेता, दलाली फलाली तो नहीं नहीं करता, रोजी क्या है, कैसे कमाता है, और नमाज पढ़ता है कि नहीं, इसके अलावा नमाज का पाबंद है कि नहीं, और ज़कात वगैरह देता है कि नहीं। ये तो नहीं कि ज़कात नहीं दे रहा तो वो ज़कात हमें खिला दे पूरी की पूरी। नहीं, सही बात है। हजरत कुछ मौलाना होते हैं जो कि वो नजराना अपना फिक्स कर देते हैं। नहीं, हम नजराना तय में नहीं करते, तय करने को आला हज़रत ने भी हराम लिखा है, उसको पेशा बनाने को भी हराम लिखा है, हराम है। और ये आज मौलवी हराम खा रहा है, इसलिए तो जबान में असर नहीं है। जितने मौलवी हैं 99% मौलवी हराम खा रहे हैं आमतौर से। आमतौर से बरेलवी मुकर्ररों में आमतौर से 98 99 ही मानो तो 90 तो मान ही लो। 90 तो हराम खा रहा है, उसी से कपड़े बना रहा है, उसी से अपने पेट भर रहा है, उसी से 20 बच्चों के कपड़े बना रहे हैं। क्या नमाज होगी इनके पीछे? सही है। इसलिए मेरे तो दोहराना पड़ जाता है अक्सर, आमतौर से जहाँ भी जाता हूँ। क्या तो करूँ? हजरत मुझको क्या नाम है, बुलाना पड़े तो कब तक आ जाएंगे, मतलब कितना वक्त लगेगा आपको इंशाल्लाह मैं आ बुलाने में? सकता हूँ, पर मेरा शर्त है कि हमारे जलसे में देवबंदी बरेलवी दोनों हो, क्योंकि जी। वो उसमें झगड़ा नहीं होगा। दो आलिम देवबंदी लो, दो बरेलवी लो, और सबको ये कह दो कि भाई यहाँ पर आप इस्लाम की तबलीग करेंगे, किसी तरह की बात नहीं होगी। और ये भी कह दें, ना तो आलात का चर्चा होगा, ना थानवी साहब का चर्चा होगा, इस्लाम का नहीं चर्चा हजरत होगा, जैसे साहब किराम का चर्चा होगा, अहले बैत का चर्चा होगा। तब अतर हुसैन कादरी आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है साहब। जी जी और हजरत वो ये कह रहे फसादी थे कि मुल्ला मौलवी आ गए हजरत कि मसला के आला हजरत और वो आला हजरत और ये आला हजरत, तो फिर तकरीर में मजा नहीं आएगा। नहीं, सही बात है। जैसे आपको कुछ देना पड़े पैसे कितना आप मालूम दे सकते हैं, तकरीर बताएंगे क्या तब तो ना। मुझे तय नहीं करता ना, ना हमें इस पैसे को हम खर्च भी नहीं करते अपने ऊपर। जैसे कहीं पर गए होंगे तो कुछ तो मिला नहीं, होगा ना पैसे को आपको हम हजरत? इस्तेमाल में नहीं लेते, तकरीर में मिलता है हम जरूरतमंद को देते हैं। जैसे पहले हम जाते थे ना, तकरीर करते थे, जो मिलता था उसे हम जरूरतमंदों को देते थे, और हम अपने जी। खर्चे में वो लेते थे जिसका मामला मालूम हो जाए कि रोजी हलाल है, या हमें अपने पर्सनल दे रहा है, तो उसे हम अपने खर्चे में लेते थे। आमतौर से तकरीर का मिलता था उसे जरूरतमंद को देते थे, क्योंकि आमतौर से जो तकरीर में मिलता है वो जुए सट्टे का पैसा होता है, शराबों का पैसा होता है, चंदों में आमतौर से सूद ब्याज वालों का सही बात। पैसा होता है, तो इसलिए हम खाना पसंद नहीं करते उस पैसे को। क्योंकि गौसे पाक के चलिए वालिद ने हजरत एक गौसे सोने जा रहे, चले कभी एक बात आपसे और राब्ता सुनो, किया गौसे जाएगा। पाक के वालिद ने एक सेब की खातिर कितना बड़ा सफर किया था। जब भी तो गौसे पाक पैदा हुए, इतने बड़े वली थे उनके वालिद, ऐसा तकवा था हलाल रोजी खाने का। तो बस आप तो हलाल रोजी की आदत डाल लो कि इंशाल्लाह हलाल रोजी खाएंगे, और नमाज 5 टाइम पढ़ो, और किसी फिरके से पाबंद मत बनो। और 1 मिनट में बता दूं, जो भी काफिर होगा, मुश्रिक होगा, या गुस्ताख रसूल होगा, वो कुरान का हाफिज नहीं हो सकता है। जैसे पूरी दुनिया में अगर यहूदी कुरान का हाफिज होता, तो आज वो दुनिया में मालूम हो जाता है कि सोशल मीडिया में होता कि नहीं होता? क्या ख्याल है साहब? जी जी हजरत। पूरी दुनिया में अगर कोई भी यहूदी 2 पारे भी याद कर लेता तो सोशल मीडिया में मार जाता कि अमेरिका में यहूदी को 2 पारे याद है। फिर उसकी जबान कैसे साफ होगी? सीन को सीन, स्वाद को स्वाद, ते को ते, ये सिर्फ मुसलमान ही निकाल सकता है। बस ये आखिरी नजरिया दे रहा हूँ कि कुरान का हाफिज सिर्फ मुसलमान होगा, काफिर, मुश्रिक, यहूदी, गुस्ताख रसूल, ईसाई, कादियानी, शिया नहीं हो सकता है। तो ये जो काफिर बनाते हैं ना बरेली वाले, ये काफिर है, वो काफिर है। जिन्हें काफिर कहते हैं कुरान के हाफिज भी होते हैं, मुकम्मल हाफिज होते हैं। अब ये कहते हैं साहब वो हुजूर ने फरमाया कि वो कुरान पढ़ेंगे हलक के नीचे नहीं उतरेगा, तो वो तो हदीस है, हलक के नीचे नहीं उतरेगा, सही है। वो एक कौम के बारे में हुजूर ने फरमाया था, देवबंदियों के बारे में थोड़ी फरमाया है, नदवियों के बारे में थोड़ी फरमाया था। तो वो तो ये इनके नीचे, तो हलक के नीचे उतरा हुआ है ना, सीने में महफूज है, वो तो हुजूर ने फरमाया हलक के नीचे नहीं उतरेगा। अच्छा, आप भी माशाल्लाह समझदार हो, बताओ क्या जो जहन्नमी हो उसे कुरान याद हो जाएगा? जी जी नहीं। अब ये जहन्नमी कहते हैं देवबंदियों को, उनके सीने में कुरान कैसे महफूज हो रहा है? अरे जिस बर्तन में छेद हो, सुराख हो, तो क्या उस बर्तन में पानी जमा हो सकता है? जी नहीं। अरे जिसके दिल में कुफ्र भरा हो, शिर्क भरा हो, या गिलाजत भरी हो, गुस्ताखे रसूल हो, क्या उसके सीने में कुरान महफूज हो जाएगा? बस आखिरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, जामे अदर मिस्र गूगल से निकाल लो आप,
जाम अदर वाले सबको मुसलमान मानते हैं, देवबंदियों को भी, बरेलवियों को भी, अहले हदीस को। ये वहाँ जाके पढ़ते भी हैं, बरेलवी उनको मुसलमान मानते हैं। मुसलमान ये बरेलवी क्यों मानते हैं कि इन्हें डिग्री लाना है। तो जिनको ये लोग काफिर कहते थे उन्हीं को अब मुसलमान मानना है। तो अब इनका फतवा इनके ऊपर ही लग गया कुफ्र का, कि जो इनके हिसाब से काफिर हैं जाम अदर वाले, पहले खड़े होते हैं, अंगूठे नहीं चूमते, यागूस अलमदद नहीं कहते, फतावा हुसाम अलमैन को नहीं मानते, इनके फतवे से काफिर हैं, बरेली के फतवे से। अब उन्हीं को ये मुसलमान मानते हैं जाम अदर में जाके, क्योंकि कौम से बचना, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास और पोरबंदर, नासिक, इसलिए ये बचने के लिए उन्हें सुन्नी बना देते हैं ये मरदूद किस्म के लोग। बस ये बात मैं कह रहा हूँ, जाम अदर निकालो गूगल से, उनको दिखाओ, रे क्यों रे तुम यहाँ पढ़ के आते हो, देखो इनके चेहरे पे दाढ़ियां भी नहीं है, पैंट व शर्ट पहनते हैं, क्यों रे यहाँ पढ़ के आते हो तो इन्हें सुन्नी बनाते हैं। अच्छा हेलो हजरत, हाँ जैसे कब तलक आपको मतलब तारीख मिलेगा आपका, कब तलक? ये बारिश निकल जाए तो 1 महीना रुक जाए, फिर इंशाल्लाह इसके बाद देख लेना। राब्ता रखना मेरा। क्या नाम है आपका? हमारा बताया ना हजरत, जुबैर अंसारी नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अंसारी हूँ। सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह मैं आऊंगा इंशाल्लाह, और मैं राब्ता रखना आप, ठीक है? जी जी, आपका यही नंबर है ना हजरत? हाँ। और सुनो, अंसारियों के खिलाफ भी बहुत बड़ी बड़ी साजिश चली है बरेलवी लोगों ने, वो भी हम बाद में बताएंगे इंशाल्लाह, ठीक है? नहीं सही बात, सोशल मीडिया पर देखे हम आपका वो क्लिप में। हाँ। तो देखा नंबर, तो हम सोचे कि राब्ता कर लिया जाए आपसे। हाँ, अंसारियों को ये लोग क्या क्या कहते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा अलग में आके, ठीक है? चलिए ठीक है, किताब लिखी है लग रहा है, चलिए इंशाल्लाह आपसे राब्ता किया जाएगा ना। ठीक है, ठीक।